आय हाय सोनियो लाइना वाली शर्ट आज पक्का मरू कोई हाय। आपके लिए नहीं है, इनके लिए बोल रहे हैं। I mean, गलत फहमी ना हो इसलिए। So welcoming the team of कल्ली जोटा on E Times and आज ना मुझे specifically एक बात कहनी है कि जे मैं हुनर दी गल करा ता मैं तो गल नहीं होनी, जे मैं हुसन दी गल करा ता भी मैं तो गल नहीं होनी। That is the impact of the इन्नी पंजाबी कित्थों लेके आए हो? पहली बार वाह। Oh, I'm impressed. Thank you, but I am impressed by the trailer of कल्ली जोटा, by the team of कल्ली जोटा, and I have to say this. आज ना बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नीरू मैम ने बहुत टाइम बाद ऐसा कोई रोल किया है जहाँ पे she comes up as a very strong character. She has done उड़ाड़ा, yes, मेरी पंजाबी उतनी भी अच्छी नहीं है. So उड़ाड़ा is there, मुंडाई चाहेदा is there that she produced. Then there was आटे दी चिड़ी. So she has always been in the league where हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो पंजाबी सिनेमा में देखना बहुत रेयर होता है. So thank you for making such movies. Thank you for the entire cast to come together. Dadu, thank you so very much. You are an national award winning director. आप इस मूवी के साथ जुड़े, मतलब मैं I'm a fan of Bollywood. तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ genuinely. We can see that. ये एक्चुअली डाई हार्ड फैन है पंजाबी फिल्म के. हर पंजाबी फिल्म देखती हैं, रिव्यू देती हैं, गानों पे रील्स बनाती हैं. एंड शी जेन्युइनली, इनके हस्बैंड एक्चुअली पंजाबी हैं, सो उन्होंने को सीख के आई नहीं है जो 2-3 लफ्ज़ लाइना बोली. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਰੱਖੇ. We're now coming to the movie. First thing कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ स्टार्ट होता है एक बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, एक थोड़े अल्लड़पन के साथ शुरुआत होती है और फिर एक डार्क फेज नज़र आता है. कुछ ऐसा जब आप करने जाते हो तो कितना मुश्किल होता है प्रोड्यूसर्स को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए मनाना where right till date we have the stereotype that Bollywood is all about rom-coms. Well, we're very fortunate कि जब टीम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो पहले तो मैं शॉक थी कि वाओ, मतलब यू गाइज रियली आर कॉन्फिडेंट कि हम ये सब्जेक्ट के ऊपर एक फ़िल्म बना सकते हैं. एंड देन सो लकी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, सनी जी, दादू जी, एवरीबडी, and they all being men, जो कि and ये एक छोटी बजट की फिल्म नहीं है. दादू Not mean men. बहुत Dadu made this film with he left no stone unturned, with a lot of grandeur, जो कि I hope कि आपको ट्रेलर देख के आपने मतलब पता लग ही गया होगा कि it's a big budget film. We spent a lot of money on it, but ये पूरी टीम की conviction थी और वो भी एक नए राइटर के ऊपर जो एक फीमेल है. Harinder Kaur is our talented, brilliant writer of this film, and I'm just like, everything was like, what? This is the film? मतलब जब सब कुछ आ रहा था, because usually the team takes all these creative decisions. I'm in Canada, and they're telling me, yeah, and I was like, wow. I'm like, Shayad, we are progressing, And for me, it was पहली बार मतलब मेरे लिए एक चैलेंज थी. एंड ऑल्सो आई वाज अ लिटिल हेजिटेंट क्योंकि ऐसा था कि पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगी. कुछ सीन्स चैलेंजिंग हैं. आई डिडंट नो. I was comfortable with it, but everyone else had to be comfortable with it also. Yeah. But you were fortunate enough that everything was in place, was falling in place one after another. Yeah, it's my favorite people. मतलब दादू के साथ मैं, ये हमारी चौथी फिल्म है दादू. And I'm so happy that Dadu is part of the film. He's a captain of the film, and the way he's presented it, he's presented us all, and every team member. I'm so grateful that Vamika did the film, because she's pure talent, and that only boosts the film. And sometimes actors को ये समझ नहीं पाते कि नहीं मेरा role क्या है, वो क्या है, ये क्या है. But it's like it takes a real actor and someone with no ego to understand that yeah, that's my meat, that's what I have to contribute to that film. And obviously सरताज जी मेरे bucket list पे थे इतने सालों से. मेरी
ठीक सी ख्वाहिश थी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले, and I'm not joking, like seriously, I'm seriously? you know that, come on, jokes apart, Die Hard fan, my whole family is a Die Hard fan, and I'm so grateful to each and every member of our team. They're all standing here. Sunny's there, Santoshji's there, Dadu, Vamika, Sartaji, me. We have a whole we're a team. Harinder's not here, Jaggi's not here, our assistant directors aren't here, but we're just such an amazing team. It looks like a family altogether. Yeah. Wonderful. सरताज जी, आपके बारे में तो इतनी तारीफ हो रही है कि मतलब नीरू मैम ने बोल दिया कि मेरी तो ख्वाहिश, मेरा भी गलत हो सकता है, बट मेरी ख्वाहिश कि उनको आपके साथ काम करना था, और दो इतनी हसीन और बेहतरीन अदाकाराएं है ना आपके साथ, तो अभी बीच में बैठ के आपको कभी ऐसे लगता है कि हाँ यहीं तो आना था, इसी के लिए तो काम कर रहा था? पता नहीं, आपने अभी चेक नहीं किया, मैं अभी ऐसे Vamika was checking what he is doing. I am cherishing the moment. So yeah, it is really incredible. जैसे इनकी ख्वाहिश थी, हमारा ख्वाब था. तो चलिए ये मुकम्मल हुए और बहुत बेहतरीन अदा से हुए हैं, तो हम खुश नसीब हैं. इस जितना भी ये मरहला तय हुआ है, और जैसे आपने कहा कि हुस्न और हुनर यहाँ तशरीफ़ फरमा है हमारे इर्द गिर्द, और मैं जैसे शी सेड कि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस यू हैव, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट. सो इनिशियली in previous interviews someone just asked what you get from it, so I said a genuine gratefulness that I'm doing something for this beautiful cause and pushing my girls ahead. And that is generally I am feeling right now, and I'm so privileged, honored and overwhelmed being the part of this beautiful project. Wow, he says everything so, I mean I don't even have words कि वो जिस तरीके से बोलते हैं, मतलब I am so sorry, I'm lost in your eyes. मूविंग फॉरवर्ड टू यू वामिका, मैंने गलवकड़ी देखी, तो उसमें जो आपका कैरेक्टर था फुल ऑफ लाइफ एंड नॉट केयरिंग अबाउट द रूल्स, हैविंग अ केयर फ्री लाइफ, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पाई थी उस कैरेक्टर से, मुझे बहुत मज़ा आया. मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो फियर्सनेस नज़र आ रही है, फॉर द राइचसनेस जो नज़र आ रही है, इज़ दैट समथिंग दैट इज़ अ वर्च्यू इन योर रियल लाइफ एज वेल, और इज़ इट समथिंग दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू वर डूइंग द मूवी? Wow, what a difficult question for me. Huh? I definitely learned from her, from my character which I played in Kali Jota. But I would like to be like her. She is so fearless. She is so courageous. She is, matlab, courage is not just in words, but she's there to fight, you know, and she does it. So I would like to be like her, you know. कि अगर मेरे आँखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं बस करके ना छोड़ दूँ, एंड आई डू समथिंग अबाउट इट. एंड अनंत इज समवन हु डिड समथिंग अबाउट इट, हु यू नो हु वाज ऑल रेडी टू फाइट. सो आई वुड लाइक टू बी लाइक हर फॉर श्योर. That's sweet, that's sweet. दादू, now coming to you, आपने जब हरजीता की थी, सो आई थिंक हरजीता को 1 साल बाद जाके वो रिकग्निशन मिला, नेशनल अवार्ड मिला. सो जब हमें मालूम है कि पंजाबी सिनेमा अभी ग्रो कर रहा है, इट्स लाइक अ लिटिल किड, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या आप वो रिस्क के लिए तैयार रहते हैं कि शायद ऑडियंस को एक बार में नहीं समझ आएगा, पर वक्त के साथ साथ एक वो स्पेस बन जाएगा, एक धीरे धीरे उनमें वो समझ आएगी कि क्वालिटी सिनेमा क्या होता है? Are you ready for that risk? Sorry, Punjabi industry is not a kid. It's the audience. I'm talking about the the audience. The audience is grasping like kids. Like industry is not a Nah, kid. nah. Industry is a grown-up child who's not getting the right education. The audience is a kid grasping gradually. पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रीजनल में आज वो सेकंड नंबर पे है. Definitely. मतलब ओवरसीज इतना बड़ा है, शायद किसी और रीजनल का नहीं है. True. मतलब मराठी का नहीं है, राजस्थानी का, किसी लैंग्वेज का नहीं है, साउथ को छोड़ के. तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बट वो ये कि अच्छे कंटेंट की जरूरत है जो स्टार्ट हो चुके हैं. ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं, कुछ लोग कर रहे हैं अच्छी फिल्में, और चेंज हो रहा है, और चेंज आएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट सर्वाइवल होगा ही होगा. क्योंकि खाली कोई भी बात बोलो तो उसके पीछे मतलब होना चाहिए.
आप हमेशा बकवास नहीं कर सकते। ट्रू। तो आप कहानी है, कंटेंट है, ठीक है, इंटरटेनिंग है, बट इंटरटेनिंग के पीछे एक कुछ मुद्दा होना चाहिए कि आप हंसो 1 घंटा 1.5 घंटा, जहाँ आप उसके साथ जुड़े रहो, बट किसी रिलेशन, किसी मुद्दे के थ्रू या किसी बात के थ्रू, ऐसा नहीं कि नथिंग, कुछ नहीं और आप अपना इंजॉय करें। तो बदलेगा, ये बदल रहा है, आई थिंक अच्छा होगा। और आगे आई होप, आपने ट्रेलर देखा है तो अभी तो होप है कि अच्छा होगा। हाँ, एंड आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है अपनी पंजाबी इंडस्ट्री में, बस वो थोड़े और पुश की ज़रूरत है, और ऐसे प्रोड्यूसर्स चाहिए और राइटर्स डायरेक्टर्स चाहिए जो हिम्मत कर ले। क्योंकि आई विल जस्ट से हिम्मत कर लो थोड़ी। बेसिकली इशू है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर भी वैसे हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाना, फिल्म बनानी नहीं है। 99% प्रोड्यूसर ऐसे जिनको कमर्शियल एस्पेक्ट सेंस ही नहीं, वो भी पता नहीं उनको, ओके कुछ पता नहीं। वो पंजाबी इंडस्ट्री का सबसे बुरा बात तो यही है, पता ही नहीं है। उनको कुछ पता नहीं, उनको खाली फिल्म बनानी है, तो उनका चाहिए है अब फिल्म बन गई, ये आ गया तो इसे फिल्म ओके, फिल्म बन गई। तो एक तो पहले वो मतलब प्रोड्यूसर को उतनी समझ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत कम है। तो मैं थैंक्स बोलने लगा अपने प्रोड्यूसरों को, संजय को खास करके, कि उसने बिलीव किया, उसने विश्वास किया और उसने मतलब कभी टोका नहीं किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ इंटरफेयर नहीं किया। और आज भी वो खुश है। उसने जब फिल्म देखी तो बोलता पता नहीं फिल्म क्या करेगी पता नहीं, बट आई एम हैप्पी कि ये फिल्म ने जो करना था, आई एम हैप्पी। तो दूसरा इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस फिल्म में ना 99% यूथ है, मतलब राइटर यंग है, प्रोडक्शन डिजाइनर यंग है, जितने भी एक्चुअली डिपार्टमेंट है मेरे को छोड़ के, बुद्धि को छोड़ के सब यंग है। तो ये एक अच्छा फिल्म का पार्ट है कि एक यंग के साथ उनका एक सोच जो मेरे में नहीं है शायद। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप ही हो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं हम नहीं सीखने को मिलता है डेफिनेट, फर्क तो पड़ेगा ना इनका, तो उनसे कुछ तो मिलेगा मेरे को, मेरे से कुछ जाएगा उनके पास, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, तो ये अच्छा है, आई थिंक अच्छा है, ये फिल्म का बेस्ट पार्ट है। और इसीलिए जो ट्रेलर है वो दिख रहा है आपके सामने। ट्रेलर में ना देखने के बाद ना मुझे ऐसे हो गया था कि मुझे जानना है क्या हो रहा है। मैंने एक्चुअली मैसेज किया, थोड़ा पहले रिलीज कर दो, रुका नहीं जा रहा मेरे से मूवी के लिए। सो आई रियली वांट टू नो, जो हम ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देख पाए, ठीक है, वील कीप दैट सस्पेंस एज इट इज़, बट व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर यू? डोंट पुट इट इन सो मेनी वर्ड्स, बट स्टिल द हार्डेस्ट पार्ट वेयर यू वर लाइक कि आपका कैरेक्टर ब्रेक हुआ और वो आपको फील हुआ जेन्युइनली। It is like step by step. She gets broken down. But I think for me, जो सबसे difficult था was obviously जो physical और mental, mentally अपने आप को इतना मतलब depress करना और वो सब चीज़ें को feel करना, that was really dark and difficult. Getting into that stage. Yeah, getting into that zone of actually feeling what she felt. फीलिंग व्हाट शी फेल्ट। एंड मैंने आपका कपल वाला शो भी देखा था जिसमें सरताज जी के लिए आपने ये बोला था कि अगर उन्होंने कभी रोमांस किया नहीं तो इतने रोमांटिक गाने लिखते कैसे हैं। मेरे को है ना, हाँ मेरे को भी, मेरा भी सेम सवाल है तो डॉक्टर आज। हाँ आज हम मौके पे चौका मारेंगे सरताज जी, आज हमको जानना है क्वेश्चन इज कि अगर मतलब रोमांस, वो एहसास कहाँ से आते हैं, हमारा भी सवाल वही है। नहीं तो किसी भी शायर को आप अगर पूछेंगे ना, सारी जिंदगी उसकी अपनी नहीं होती, वो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर होते हैं और ब्लेस्ड होते हैं कि दे हैव द वर्ड्स एंड द राइमिंग टू पुट इनटू। तो मेरे जितने ज़्यादातर गाने हैं वो ऐसे किसी कुछ देखा सड़क पे। एक बार मैं चंडीगढ़ से हुशियारपुर जा रहा था, रास्ते में पेड़ काटे जा रहे थे, सो मैंने गाना लिखा कि यार के जे ना रे हरियाली फिर की करना तख्ता नूं सुन भाई यारे वाले बिना चीर दरख्ता। हुण आप कहोगे आपने तो कभी पेड़ काटा नहीं है ना। मैं भी उनसे सवाल कर रही हूँ जो शब्दों के महारथी हैं, उनको मैं कैसे फंसाऊँ ना शब्दों में। सो ठीक है, सॉरी, माय बैड। अच्छा, इससे पहले मेरे यहाँ पे दोस्त मुझे बोले कि टाइम हो गया, तो मैं जल्दी से जो एक राउंड जो सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रैपिड फायर, वो करते हैं। ओके, 3 things that materialistic things, okay, 3 materialistic things without which you cannot live. Wine, my phone, and moisturizer. I thought you'll say protein bar.
Okay. 3 things that pisses Sartaj ji the most. That pisses you off the most. That हाँ 3 तो ज़्यादा नंबर हो गया कि है Wasting of time. okay. It is the massive thing for me. Second, if my concert's audio equipment is not balanced. Fair enough. And third, if I have to wake up early. Okay. 3 excuses Vamika had made or can make to ditch a date. I have work. मेरे डॉग को चोट लग गई. Oh, nobody's at home, so I have to be at home because I have 6 dogs. So, I can't come. Yeah. काफी सही है ये वाले. Okay. And I don't go out a lot, so I always have these excuses ready for all my friends who invite me to dinner parties and everything. I'm like, listen, I can't. Yeah. Amy, Mandy, if you're listening, so you know these are excuses. No, I hardly meet them. They both are in Punjab. I'm in Bombay, so whenever I come to Punjab, if I'm in Punjab for more than 2 days, I make it a point to meet Amy and Mandy. टाइम निकाल के मैं आमी के घर पे मैंडी को बुला लेती हूँ, हम यहीं वहीं मिल लेते हैं. मोस्ट टाइम सब तीनों साथ में ही मिलते हैं. बट हाँ, ऐसे उनको नहीं, उनको क्या, उनको नहीं. ओके दादू, फॉर यू माय क्वेश्चन इज, एक ऐसा टैंट्रम जो एक्टर्स थ्रो करते हैं और आप ऐसा हो जाता है कि बताता हूँ बाद में, वैसा वाला. एक तो नहीं, बहुत ज्यादा है. एक का जवाब नहीं है, काफी सारे हैं. चलो 2 बता दो आप. टाइम नहीं है. कोई एक टैंट्रम कि आपको लगता है कि एक जो आपको पसंद बताता हूँ नहीं है मैं कि अभी. यार ये मत बोला करो एक्टर्स होके. नहीं, तो अभी आज 6 दिन प्रमोशन है, हमने अभी नहीं बोलना. He is playing safe. Okay, done. अगर आपको कभी बायोपिक करने का मौका मिले तो आप किसकी बायोपिक करोगे? अपनी. मैं अपनी फेवरेट हूँ, पसंद आया मेरे को ये. ओके सरताज जी, आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या होगा? परहेजगार. Okay. Vamika, for you, my question is, if one rumor you had to spread about yourself, what would that be? बड़ा स्पाइसी सा कुछ ऐसा जूसी गॉसिप जो ब्रैड पिट के साथ बातचीत चल रही है, anything like that. ऐसे रूमर यार मैं उनको इतने अच्छे इंटरेस्टिंग, मुझे रूमर और ये बात एक्सक्यूजेस वाली बात हो जाती है. यार मजेदार तो है. अच्छे नहीं इनके सवाल बताओ आप. आपकी demeanor sizzling है ना. हाँ वो sizzling, yes. Rumor that oh my god, that I can direct. Okay, Dadu, the final one is for you. A Punjabi film that you believe didn't get its due credit. कोई पंजाबी फिल्म जो आपको लगता है कि उसको वो उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, वो इतनी अच्छी थी लेकिन इतनी चली. हर्षिता बोल सकता हूँ. I was about, जिसने पूछा मैंने सीधा ये बोलने वाली थी, वो हरजीता. एक फिल्म ऐसी थी जिसके लिए जिनको मैं जानता भी नहीं था, उनके कॉल आए थे. और अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म से मेरे को जानते हैं. तो पब्लिक प्लस एक्टर्स प्लस जितने भी वो हर किसी को अच्छी लगी थी. And a national award. And a national award. So yeah. तो बट ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम होता है. Thank you so much. This was all. Thank All you. the very Thank best. you. Thank you.